Hello everyone, a very good evening and welcome to the next leg of the current affairs program. So it's been a gap of almost 7-8 days since we had a session, and now today I'll be covering all the current affairs which will be up to 24th of March. So this is the period that I'll be covering. So almost the news items of the last 10 days. Before that we had already covered everything. Okay. So the very first news item that I would like to cover today is the National Ropeway Development Program. The National Ropeway Development Program. And this ropeway program is also known as Parvatmala project. Okay, so this is also called as Parvatmala project, and this is an important project in a sense that the government is planning to make ropeways in those areas where the chances of improving the road links and rail links are not possible much. Okay, the feasibility of improving the road or railway is not much. Okay, so if roadways and railways cannot be improved, it means that we need something which can help us to increase the connectivity. So this is to improve the connectivity of the areas, improving connectivity. Okay, and the very first question that you can get is on the name itself. Exam mein kya puchega? Parvatmala is associated with. Okay, so you'll have to give this thing that it is related to the ropeways. Okay, and it was announced in budget, so it is important. जो अभी बजट आया है उसमें इसे अनाउंस किया गया है, so it is important that you remember this thing, and it is one of the important this thing. So the Ministry of Road Transport and Highways is responsible for this thing. The Ministry of Road Transport and Highways. Okay, so the ministry will take care of all the aspects of the construction, okay, related to this project. वही ध्यान देने वाले हैं. They'll do the research. They'll also look forward to the policy making. So research, construction, policy making. इसके गाइडलाइंस जो है ये मिनिस्ट्री देने वाली है. Policy making. Okay, so all aspects will be taken care by the ministry. और इसके लिए क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर एक एजेंसी आती है, दैट इज कॉल्ड एज नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड. नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड. on behalf of NHAI, that is National Highway Authority of India. ठीक है, तो इसके बिहाफ पे ये काम करने वाली है. So you need to make sure that you remember this thing. And this NHLML will construct 8 ropeways in 23. Okay, so how many? 8 ropeways in 23. ये आपको जानना है. This is the information that you need to remember. अब ropeways बने, roadways बने,
आपको कुछ तो फायदे होने वाले हैं। ओके, तो सबसे बड़ा फायदा क्या है? द बिगेस्ट बेनिफिट इज दैट इट इज एन इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम रोपवे की बात करते हैं तो दे आर वेरी इकोनॉमिकल। ओके, और एक दूसरा फायदा हम देख ही चुके हैं कि वेर एवर द रोड्स एंड रेलवेज कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, तो वहां पे ये वर्क करता है। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो ए वेरी फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इट इज फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। Okay, so if there's a question in mains, at least you can write about these points. ठीक है, प्लस इट इज अ लाइट लास्ट माइल कनेक्टिविटी, क्योंकि और कुछ पहुंच ही नहीं रहा है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी, एंड इट इज ऑल्सो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। दिस इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली वे। ओके, दिस इज वन ऑफ द इन्वायरमेंट फ्रेंडली वेज। तो इससे क्या है, इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं हो रहा है, प्लस wherever the terrain is very tough, ठीक है, it can easily be built even on those areas। तो difficult slopes जो हैं, okay, even in difficult slopes, constructed in the difficult slopes। okay, so you can talk about these points related to it, but do go through it। सबसे सिंपल क्वेश्चन जैसे कि मैंने बताया कि ये है क्या, यही पूछ लेंगे। okay, now one of the interesting terminologies which is in news is terminator zone। okay, ये न्यूज में चल रहा है। the second thing that will be covering is terminator zone। अब ये जब टर्म आएगा तो आप बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, बट बेसिकली इट इज व्हाट, दिस इज द ट्विलाइट जोन विच इज मोर पॉपुलर। ठीक है, एंड इट इज रिलेटेड टू प्लैनेट्स। ओके, प्लैनेट्स में टर्मिनेटर जोन या ट्विलाइट जोन होते हैं। सो बेसिकली दिस टर्म इज यूज्ड फॉर दोज प्लैनेट्स which are tidally locked। okay, used for tidally locked planets। इस पे भी क्वेश्चन आता है कि what are tidally locked planets then, ये क्या होते हैं? so tidally locked planets are the planets which are moving around the star। ठीक है, ये कोई स्टार है, and if the planet is moving in a way that one of the face is always towards sun, always towards their star, okay, and the other face is always under darkness, this experience darkness। okay, so tidally locked, it means that the face of the planet is not changing। अगर ये पेन हम मानते हैं, ये इस साइड क्या है कि पतला है, इस साइड थोड़ा ब्रॉड है, तो ये हमेशा अगर मेरी तरफ घूम आगे पीछे आ रहा है तो ओनली दिस साइड इज विजिबल। ये ऐसे घूमते हैं कि सिर्फ एक साइड ही हमेशा एक्सपोज हो रहा है स्टार की तरफ। इट मींस दैट द एरिया विच इज हियर इट इज हॉट। यहां क्या है कि डिफिकल्ट टू सर्वाइव, ये बिल्कुल खतरनाक एरिया है। और ये क्या है, फ्रीजिंग कोल्ड। okay, here also one cannot survive because temperatures may go as low as -70 -80 degree Celsius। वहां भी survive नहीं कर सकते हैं। okay, so in these kind of planets there is only a small area, okay, which is at the juncture of these। एक छोटा सा एरिया होता है सरफेस पे जहां कोई सर्वाइव कर सकता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द टर्मिनेटर जोन। ओके, so terminator zone is basically that area which is neither too hot, areas that are neither too hot nor too cold। ठीक है, so this is the terminator zone। और tidally locked की अगर हम बात करते हैं, so the stars which are called as M dwarfs, okay, M dwarf stars
have mostly tidally locked planets. ओके, सो एम ड्वार्फ्स हमने पहले भी करंट अफेयर्स में ही डिस्कस किया हुआ है. सो दिस इज ए स्टार whose brightness is only around 70% of that of our sun. Okay, the brightness is around 70% of our sun. Okay, so this is a term on which you can get a question. या फिर m dwarf क्या है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है. What are tidally locked planets, इस पे क्वेश्चन आ सकता है. Okay, so the gravity is in such a way. ठीक है, जब हम tidally locked मतलब it is related to gravity. ग्रेविटी ऐसे एक्ट करती है कि सिर्फ एक फेस स्टार की तरफ हमेशा रहता है, अपोजिट वाला कभी उसके सामने आता ही नहीं है. ओके, नाउ another thing that is in news is Mount Merapi. Okay, volcano. This is a volcanic mount, and in 2010 when it erupted, it killed thousands of, not thousands, hurt thousands of people, but killed around 300 people. तो ये काफी डेंजरस है, जो कि इंडोनेशिया में है. ओके, दिस इज इन इंडोनेशिया. सो मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन में पहले ये पूछा जा सकता है. ओके, एंड इट इज बिटवीन सेंट्रल जावा जो डिस्ट्रिक्ट है, इसके बीचों बीच यहां पे है, दूसरी साइड इसमें योग्यकर्ता प्रोविंस ऑफ इंडोनेशिया. प्रोविंस, ओके, इसके बीच में है. एंड दिस इज ए फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन. And it is one of the most active volcanoes of Indonesia. It is most active volcano of Indonesia. Okay, and still people go for tourism. और ये फिर से एक्टिविटी में है, तो ये न्यूज में चल रहा है. ओके, सो आपको ये समझना है कि ये जगह पूछी जा सकती है. और ये इतना, why it is spewing so much lava? Okay, why it is active? Because it is in the circum-Pacific belt where plates are meeting, जिसे आप रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं. Okay, so it is situated on the ring of fire, so it is one of the most active volcanoes in that area and it is in news. और ये इंडोनेशिया वाले इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी क्या है, माउंट सेमेरू वो इरप्ट हुआ था, तो वो भी न्यूज में था. ओके, सो माउंट सेमेरू इज ऑल्सो इन इंडोनेशिया. ये हम कवर कर चुके हैं पहले ही. ठीक है, तो उसके बगल में ये. ओके, नाउ आफ्टर माउंट मेरापी we'll talk about this सोलोमन आइलैंड विच इज इन न्यूज. चाइना और यूएस के बीच फंस गया है एक छोटा सा आइलैंड. ओके, दिस सोलोमन आइलैंड इज इन न्यूज. आपको पता है कि प्लेसेस बहुत बार पूछे जाते हैं, प्लेसेस इन न्यूज. सो इट कैन बी आस्क्ड कि वेयर इज सोलोमन आइलैंड सिचुएटेड. सो इट इज सिचुएटेड इन द साउथ पैसिफिक. ठीक है, ये पैसिफिक में सिचुएटेड है. एंड दिस इज इन न्यूज बिकॉज चाइना इज एक्टिव इन दिस कंट्री. Okay, China is active in this country and now they are making a port in the Solomon Islands. और वो कहाँ पे बना रहे हैं? Honiara, the capital of Solomon Islands. So they are building a port at Honiara, the capital of the Solomon Islands. Okay, and ये जो सोलोमन आइलैंड्स है, इसको की माना जाता है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए. इट इज अ की फॉर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना.
Okay, it is a key for the Belt and Road Initiative of China. So you need to remember this. And इसकी एक और खासियत है जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इट इज लाइक जैसे हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, वो क्या है कि वॉल्केनिक भी आइलैंड्स मिलते हैं, कोरल भी मिलते हैं. सो सोलोमन आइलैंड्स में भी यू हैव वॉल्केनिक आइलैंड्स and coral islands, both are found here. Okay, so another question which can be asked on this is which type of islands are these. Okay, and it has 6 major islands and around 92 minor islands. Okay, so approximately near about 100 islands are there, to be precise 98 of them. Okay, but ये numbers नहीं पूछने चाहिए. Okay, 1000 के अराउंड है. इनफैक्ट इट इज नॉट 92, 992 के अराउंड है. तो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दिस एरिया. ओके, सो साउदर्न पैसिफिक मैंने कहा. अगर साउथ में भी आप स्पेसिफिक होंगे तो साउथ वेस्टर्न पैसिफिक. ओके, सो पैसिफिक में भी साउथ वेस्टर्न पार्ट. कभी कभी बहुत ही स्पेसिफिक पूछ लेता है. ओके, लाइक वी हैड सीन सिंस 2020 दे आर गोइंग वेरी स्पेसिफिक. तो साउथ वेस्टर्न पैसिफिक भी वर्ड आप देख सकते हैं. सो मेक श्योर दैट यू आर रिमेंबरिंग दिस. ओके, नाउ one of the important area in India which is in news is Gandhmardan Hill. ठीक है, तो places, areas, they ask a lot of questions. So Gandhmardan Hills, it is in Odisha. Okay, and it has been declared as a heritage site. Okay, by the government of Odisha. Odisha government ने किया हुआ है. And it is third heritage site in Odisha. ठीक है, ये तीसरे नंबर पे है. इससे पहले भी 2 रह चुके हैं. And this is the concept of BHS आपने पढ़ा होगा, biodiversity heritage sites. So it is a biodiversity heritage site, PHS, that is in Odisha, and biodiversity heritage site declared by the Odisha government. And it is famous because it is considered as the Ayurvedic paradise of Odisha. Okay, so which of the following hills is called as Ayurvedic paradise of Odisha? ये question आ सकता है. Okay, it means traditional medicines are found here. So this is very important. And biodiversity is also rich. Heritage site हमने इसलिए डिक्लेयर किया है क्योंकि यहाँ biodiversity भी बहुत ज़्यादा रिच है. और इससे पहले अगर हम बात करते हैं, so this Gandhmardan Hill and this महेंद्रगिरी हिल भी है उड़ीसा में. इससे पहले क्या था? महेंद्रगिरी हिल. Like I said, 2 more locations in Odisha are there. तो अर्लियर वाले में आपको ये नाम याद रखें. Which of the following are under biodiversity heritage list? ऐसा देखे तीनों नाम भी आ सकते हैं. एंड मंडसरू गॉर्ज, ओके, ये दोनों आपके न्यूज में है उड़ीसा से, तो आपको याद रखना चाहिए. ओके, एंड गंधमार्दन हैज अ रिजर्व फॉरेस्ट. सो ऑलरेडी वो रिजर्व फॉरेस्ट था. बायोडाइवर्सिटी इज रिच, so you need to make sure that you remember this. And it is also monument heritage. क्यों डिक्लेयर किया गया है? क्योंकि यहाँ monuments भी है. ओके, इफ वी टॉक अबाउट गंधमार्दन, there are monuments. Okay, so there are temples which are very old. ठीक है, some of the oldest temples are here. एक है नरसिंहनाथ टेम्पल एंड हरिशंकर टेम्पल. एंड हरिशंकर टेम्पल.
Okay, so it is a reserve forest rich for biodiversity, Ayurvedic significance, plus some monuments are also there. Okay, so make sure that you are remembering this. Gandhmardan Hill. Okay, so locations. Now locations की जब हम बात कर रहे हैं, तो now National Chambal Sanctuary is in news. National Chambal Sanctuary. And if we talk about this sanctuary, it is at the contact point of 3 states. ठीक है, you have Rajasthan, you have Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. Okay, so this is something that is at the contact point of 3 states. Okay, so these 3 states have started a joint action. Okay, so joint action by these states to stop the sand mining. To stop the sand mining. ठीक है, सैंड माइनिंग स्टॉप करने के लिए ये चीज यहां पे है, तो आपको ये जानना चाहिए. लोकेशन रिलेटेड क्वेश्चन आ जा सकता है कि बिटवीन विच स्टेट्स. इट इज अ ट्राई जंक्शन ऑफ 3 स्टेट्स. ओके, यू कैन सी दैट इट इज अ ट्राई जंक्शन ऑफ 3 स्टेट्स. तो कौन कौन से स्टेट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है. ओके, इसकी सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करते हैं, ओके, तो दिस सेंचुरी इज फेमस फॉर 2 ऑफ द इंपॉर्टेंट स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज, घड़ियाल्स. ओके, जो ऑलमोस्ट आपके खत्म होने वाले थे, बट द नंदन कनन जू दैट इज इन उड़ीसा, जू इन उड़ीसा ran a breeding program which saved their population to save it. ओके, तो उड़ीसा में जो प्रोग्राम चला था उससे इन्हें बचाया गया था. तो घड़ियाल्स भी यहां मिलते हैं, प्लस द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया दैट इज गैंगस डॉल्फिन, वो भी यहां मिलती है. ओके, एंड दिस गैंगस डॉल्फिन, जिसका की नाम locally it is called as Susu, and this is the national aquatic animal of India. Okay, so why it is important, इस पे आ सकता है. अब ये सेंचुरी कैसा है, इट इज ए प्रपोज्ड रामसार साइट, यानी वेटलैंड भी है. It means that this also acts as a wetland. So ecologically sensitive area, ecologically important area. Okay, and it is a fragile ecosystem. And wetlands के बारे में आपको ऐसे भी पता है कि they are always important bird and biodiversity area. Okay, so important bird and biodiversity area. Okay, so important bird and biodiversity area as well. Okay, and this is important. Wetland जब भी आता है तो वो biodiversity regions ही होते हैं, plus especially migratory birds वहाँ बहुत सारे आते हैं. Okay, so this is an important sanctuary for Siberian birds. ठीक है, रशिया से उड़ते हुए यहाँ तक पहुँच रहे हैं. और there is a river sanctuary as well. यहाँ पे क्या है, there is a river sanctuary. चंबल रिवर का जो हिस्सा है, रिवर सेंचुरी फॉर इंडियन स्कीमर. ओके, दिस इज अ रिवर सेंचुरी फॉर इंडियन स्कीमर. ये भी एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है दैट यू नीड टू रिमेंबर. ओके, सो यू कैन गेट ए क्वेश्चन ऑन नेशनल चंबल सेंचुरी. मेक श्योर दैट यू आर गोइंग थ्रू इट. ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि सैंड माइनिंग को रोकने के लिए तीनों स्टेट्स एक साथ कोशिश कर रहे हैं. द अदर थिंग,
चंबल इज अ फ्रेजाइल एरिया ऑलरेडी. चंबल सुनते ही दिमाग में क्या आता है? रवाइंस, डाकू. ठीक है, तो डाकू तो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो नहीं रहे, लेकिन रवाइंस आर देयर, द बेडलैंड्स. ओके, so already the soil quality is very bad, it cannot support much vegetation, so it is a fragile ecosystem which needs protection, and sand mining is affecting the area negatively. तो इसीलिए ये न्यूज में चल रहा है. ओके, now if we move forward, one more area around the world which is in news, it is Senia Island. Okay, सीनिया आइलैंड्स न्यूज में है. ठीक है, ये भारत में नहीं है, इट इज नॉट इन इंडिया. सम ऑफ यू, इफ याद क्यों रखना है कि ऐसे नाम का कोई आइलैंड इंडिया में नहीं है? पहले क्वेश्चन तो ये इट इज इन इंडिया कह देंगे. इट इज अराउंड यूएई. यूएई के पास एक आइलैंड है ये. एंड व्हाई इट इज न्यूज? प्लेस इन न्यूज है बट हिस्टोरिकल कारण से है. दिस वॉज एन एरिया which was oldest pearling town. यहां मोती बनाए जाते थे. okay, oldest pearling town. It has been found around this UAE, और ये इतना पुराना है, it is older than Islam. okay, जब इस्लामिक रिलीजन नहीं आया था उससे पहले का शहर है जो यूएई में बसा हुआ है. प्लस द अदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट अबाउट दिस एरिया. ठीक है, ये इन्वायरमेंटल हम नहीं बात कर रहे हैं, बट क्योंकि ये प्लेस इन न्यूज है तो मैं इसको यहीं कवर कर दे रहा हूं. ओके, इसके बारे में पूछा जा सकता है बिकॉज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज क्लियरली विजिबल. ओके, सो दे आर सर्टेन एरियाज वेयर बिग हाउसेज आर देयर एंड दे आर टुगेदर. तो बड़े घर एक साथ हैं, एंड स्मॉल हाउसेज दे आर ऑल्सो टुगेदर. इसका मतलब है कि जो रिच थे वो एक जगह रहते थे, जो पुअर थे वो अलग रहते थे. तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज विजिबल. प्लस इट वाज नॉट सीजनल. ओके, सो द स्टडीज सजेस्ट दैट ईयर राउंड पर्लिंग एक्टिविटी वाज देयर, जो कि किसी भी ओल्ड टाउन में नहीं देखा जाता है. ईयर राउंड पर्लिंग एक्टिविटी. ओके, which is rare. क्योंकि ज्यादातर एरियाज में, if you look at most of the areas where pearling activity was happening in the past, they were seasonal in character, but this thing is not seasonal. okay, so और ये मिला भी कहां पे? दिस इज नियर मार्सलैंड. खोरल बैदा मार्सलैंड के पास है, नियर खोरल पैदा मार्सलैंड ऑफ यूएई. लीस्ट पॉपुलेटेड एरिया. ठीक है, इन जगहों पे क्या है? बहुत ही कम पॉपुलेशन है. सबसे आइसोलेटेड प्लेसेस में से माना जाता है यूएई के, वहां खोजा गया है. ओके, so this is important. Okay, so one of the islands that you need to remember is this. Now इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन बना है, आपको पता होगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये पूछा जा सकता है. इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन. सो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन की अगर हम बात करें, ओके, सो दिस हैज बीन डेवलप्ड and it is a first cross border pipeline between these two countries. First cross border pipeline between these two countries. These countries. Okay, लेकिन ये सिर्फ पहला इन दोनों के बीच में है, and this is second energy pipeline overall. It means cross border pipeline. Okay, cross border की हम बात कर रहे हैं. Second cross border energy pipeline. Okay, where India is involved with India.
फर्स्ट वॉज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इंडिया और नेपाल के बीच ऑलरेडी हमारे पास ये चीज है। ओके, सो पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये जो स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं, विच इज द फर्स्ट पाइपलाइन, सो दिस इज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। सेकेंड क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन, दिस इज इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया बांग्लादेश के बीच में एक ही है, इनके बीच भी एक ही है। द अदर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि कहां से कहां तक है, ठीक है। सो इट इज फ्रॉम सिलीगुड़ी in West Bengal, okay, to Parvatipur, okay, पार्वतीपुर बी नहीं है, बी है, ठीक है। पार्वतीपुर इन दिनाजपुर प्रोविंस ऑफ बांग्लादेश, दिनाजपुर बांग्लादेश। सो दिस कैन बी आस्क्ड कि फ्रॉम वेयर टू वेयर दिस पाइपलाइन इज देयर। लेकिन आपको पता होगा कि सिल्लीगुड़ी में तो कोई तेल है ही नहीं, नो रिफाइनरी, नो नथिंग। तो ये ऑयल या एनर्जी का सोर्स है कहां पे? सो नुमालीगढ़ रिफाइनरी इन असम, रिफाइनरी असम, ओके। सो 1 million ton approximately 1 MT, 1 million ton oil is sent from Numaligarh to Siliguri, and this will be transported through the pipeline to Parvatipur, okay. Similarly अगर हम नेपाल वाले की बात करते हैं तो मोतिहारी इन बिहार, ये मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट, it is in Bihar, okay. So this pipeline between India and Nepal is from Motihari to Amel Khunj in Nepal, ठीक है। तो अमालेखगंज इन नेपाल, यहां तक जाता है। और आपको पता है कि मोतिहारी में भी बिहार में कोई रिफाइनरी नहीं है, सो इट इज बरौनी से आता है, okay? बरौनी रिफाइनरी इज इन बिहार ओनली, फ्रॉम बरौनी दिस इज oil to Motihari which is going to Amlekganj in Nepal, okay. And this government to government export, this is what? This is GTG, government to government export जिसे हम कहते हैं, government to government export. The agency that is responsible is Indian Oil Corporation Limited, IOCL, ठीक है। इसके लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड is doing it on behalf of the Indian government, हम ये कर रहे हैं, okay. And if we talk about Bangladesh, India gave 377 crore credit, okay, for this one. This is for फ्रेंडशिप पाइपलाइन। इंडिया ने फ्रेंडशिप पाइपलाइन जो बांग्लादेश के साथ है, इतना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है फॉर दिस सेकेंड क्रॉस बॉर्डर एनर्जी लिंक एंड फर्स्ट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो डू रिमेंबर दिस वन, ओके। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 131.5 किलोमीटर्स, 131.5 किलोमीटर्स। दो मुझे नहीं लगता है कि डिस्टेंस में पूछना चाहिए, पर यू नेवर नो व्हेन इट कम्स टू फैक्ट्स। 131 की जगह 300 लिख दिया, आप कंफ्यूज हो गए, तो सो नो 131, ओके। नाउ यू मस्ट हैव ऑल्सो हर्ड ऑफ, हम क्या रोपवेज की बात कर रहे हैं, अभी हमने पाइपलाइंस की बात की एनर्जी से रिलेटेड। सो दिस द ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम इज इन न्यूज, ओके। ग्रीन टग transition program. I hope that you have heard of TUG, okay. TUG अगर आपने सुना है तो आपको पता होगा, it is related to the shipping industry, okay. So green tug transition program, so basically TUG जो word है, it is a vessel, okay, that it is a marine vessel
जब कोई शिप फंस जाती है तो उसको खींच के निकालने के लिए इसे यूज करते हैं. ओके, जब पानी कम रहता है, वो मूव ना कर पाए, अटक गया, सो टग इज यूज्ड. सो इट इज अ मरीन वेसल that is used to move the ships that fail to move themselves. ओके, और ज्यादातर टग्स क्या है, एनर्जी इंटेंसिव होते हैं, जिससे बहुत पॉल्यूशन होता है. ओके, सो ग्रीन टग में क्या किया गया है, आपके इसमें आपका एनर्जी ज्यादा वेस्ट ना हो. ओके, सो ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम्स लगाने की बात हो रही है. सो ग्रीन टग इज, it will use green propulsion systems which is less polluting. That is, it means that they are less polluting. Okay, friendly to environment friendly systems will be used. Okay, तो इसके लिए बनाया गया है. तो पहला सवाल तो आपको यही आ सकता है कि व्हाट इज ग्रीन टग, व्हाट इज टग. ओके, एंड द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, इसको कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज. ठीक है, सो दिस थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. और ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग सेंटर ऑफ एक्सेलेंस पहला कहां बनाया, ये भी न्यूज में था. द फर्स्ट नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग, ये किसी कोस्टल एरिया में नहीं है. ठीक है, जब जैसे ही पोर्ट देखते हैं तो कोस्टल एरिया दिमाग में आता है. दिस इज इन गुरुग्राम, हरियाणा. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल थिंक दैट शिपिंग लिखा हुआ है तो हमें लगता है कि कोस्टल सिटी कोई आएगा. तो इसको याद रखिएगा कि दिस इज नॉट सम कोस्टल सिटी, दिस इज दिस वन. ओके, अब ग्रीन हाइब्रिड टग्स जो होते हैं, ओके, सो ये ग्रीन हाइब्रिड टग्स या ग्रीन टग जो है, ग्रीन हाइब्रिड टग, लाइक आई सेड, वो प्रोपल्सन सिस्टम यूज करने वाले हैं. यानी कि दे आर गोइंग टू यूज द फ्यूल्स विच आर नॉन फॉसिल फ्यूल सॉल्यूशंस. Non-fossil fuel solutions will be used in this. Okay, so this will contain things like ammonia. ठीक है, अमोनिया का यूज करेंगे. तो ये पूछा जा सकता है कि क्या यूज होगा, दो इट इज मोर अबाउट साइंस एंड टेक, बट मैं जब पोर्ट से रिलेटेड न्यूज है तो इसमें कवर कर दे रहा हूं. ठीक है, सो दिस इज अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेनॉल. ठीक है, ये हम कर रहे हैं. एंड वाई इंडिया इज फोकसिंग ऑन दिस थिंग, सवाल ये है कि इंडिया इस पे फोकस क्यों कर रही है. बिकॉज इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री अंडर IMO ग्रीन वॉयस 2050 प्रोजेक्ट. इंडिया इज फर्स्ट कंट्री अंडर IMO voyage 2050 program. Okay, first country which has been given this purpose. ठीक है, pilot project related to green shipping. Okay, so IMO green voyage project, IMO green voyage project 2050. तो ये प्रोजेक्ट इंडिया में इंप्लीमेंट किया जा रहा है. एंड इंडिया हैज बीन आस्क्ड टू रन द पायलट प्रोजेक्ट फॉर ग्रीन वॉयज. ओके, under this program to run pilot project for green voyages
इट मीन्स शिपिंग इंडस्ट्री को हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इंडिया हैज बीन गिवन दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, and this thing will be done. Indian government has selected 3 ports for this thing. Okay, the first is Paradip port, Deen Dayal port and Chidambaram port. Paradip port, उड़ीसा, दीन दयाल पोर्ट कांडला के नाम से जिसे आप जानते थे पहले. ओके, इट वाज कॉल्ड एज कांडला पोर्ट. Now it is Deen Dayal Port, and VO Chidambaram Port, Chennai. Okay, so one is in Gujarat, another is in Odisha, and another is in Chennai. So you need to know this thing. Okay, and इन तीनों में क्या करने वाले हैं? Indian government is developing them as hydrogen or green hubs. हाइड्रोजन हब्स कहिए या ग्रीन हब्स का कॉन्सेप्ट कहिए. ठीक है, सो दीज विल बी डेवलप्ड एज हाइड्रोजन हब्स बाय 2030. so this is also important, the target year. do remember this. another question जो इसी से आ सकता है वो क्या है कि what is a hydrogen hub. so hydrogen hubs are the places which can produce, which can store and transport the hydrogen fuel. ठीक है, so these ports can generate, handle and store, generate, handle and store green fuels. Okay, so this is something that is important. make sure that you are going through this. और ग्रीन हाइड्रोजन क्या है ये हम पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है, आई हैव कवर्ड इन दिस थिंग इन डिटेल ऑन द प्लेटफॉर्म ओनली. ठीक है, इसी पे चैनल पे आप देखेंगे पुराने करंट अफेयर्स में हमने ये कवर किया हुआ है. और ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको रिवीजन में मज़ा नहीं आ रहा है. ठीक है, तो रिवीजन कीजिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, नहीं तो कुछ भी सब कुछ नया लगेगा. ओके, नाउ वीनस पे वॉल्केनो हो रहा है. दिस इज इन न्यूज. विच वॉज कंसिडर्ड, वीनस वॉज कंसिडर्ड व्हाट, ये इनएक्टिव है, यहां कुछ नहीं होता है, इट इज डेड प्लेनेट जैसा कंसिडर करते थे. ओके, बट हियर वॉल्केनिक एक्टिविटी हैज बीन एक्सपीरियंस्ड इन एन एरिया विच वॉज ट्रेडिशनली, वॉल्केनो बहुत सारे हैं. ओके, so Attarajio area, the Attarajio area on Venus जो आइडेंटिफाई किया गया है, यहां पे वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है. एंड प्रिसाइजली 2 ऑफ देम. ओके, इसमें भी क्या है, ओजा मोन्स एंड मट मोन्स. एंड मट मोन्स ये नाम है उन एरियाज के जहां वॉल्केनिक एक्टिविटी है. ओके, तो यूपीएससी पूछ सकती है कि इन विच कंट्री इट बिलोंग्स. तो ये कंट्री में नहीं, दूसरे प्लैनेट पे ही है. दिस इज अर्थ्स ट्विन. इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन. ओके, दिस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट because its atmosphere has lot of carbon dioxide. ओके, मरकरी में कुछ भी एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो वो हॉटेस्ट नहीं है. इवन व्हेन मरकरी इज क्लोज टू द सन इट इज नॉट हॉटेस्ट. वीनस इज द हॉटेस्ट बिकॉज इट हैज ग्रीन हाउस गैस दैट इज CO2. ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा हॉट है प्लैनेट. और आपका इफ वी टॉक अबाउट मट मॉन्स, ये हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन यहां पे है. ओके, हमारा माउंट एवरेस्ट क्या है, सिर्फ 8 किलोमीटर है, ये 9 किलोमीटर ऊंचा है. ओके, मट मॉन्स इज 9 किलोमीटर्स हाई विच इज एन एक्टिव वॉल्केनो. अब समझिए, हिमालय से अगर वॉल्केनिक एक्टिविटी होती, ठीक है, तो वो सारे गंगा प्लेन्स तक आता. ओके, चाइना भी थोड़ा घूम के आता. ओके,
So this is something that you need to know about this one. Okay, now अब क्लाइमेट चेंज है. ओके, सो दिस आईपीसीसी की एक रिपोर्ट आई है जिसे हम सिंथेसिस रिपोर्ट कहते हैं. ओके, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी सिंथेसिस रिपोर्ट 6. okay, so SR6, this is in news. IPCC is intergovernmental panel on climate change. So it comes with many reports. ठीक है, जो ये 6th रिपोर्ट है इसकी सिंथेसिस आई है. ओके, सो 6th रिपोर्ट जो है इट स्टार्टेड कमिंग आउट सिंस 2018 ओनली. ठीक है, 2018 से 2022 तक में इन्होंने 6 रिपोर्ट दी थी. 3 वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट्स, and 3 special reports. Three working group reports and 3 special reports. तो इसका जो आउटकम है वो इस सिंथेसिस रिपोर्ट में दिया गया है. ओके, एंड इट रिकॉग्नाइजेस दैट द CO2 इज स्टिल द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस. ये रिपोर्ट क्या कहती है? CO2 इज स्टिल द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस. सबसे खतरनाक आज भी CO2 को ही माना है. ओके, प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस. ओके, सो दिस इज प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस, सबसे डेंजरस है. द सेकेंड थिंग दैट इट सेज इज रिलेटेड टू इंडिया. इंडिया में क्या है? 17% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इज देयर. ओके, 17% ग्लोबल पॉपुलेशन, but India is responsible for only 4% of addition of the greenhouse gases. ठीक है, so global cumulative CO2 emission 4% of global CO2 emissions. okay, तो इस पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ मच इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया. सो इट इज द रिपोर्ट दैट हैज सजेस्टेड. ओके, और दूसरी चीज जो कह रही है, दिस रिपोर्ट सजेस्ट दैट the climate change cannot be stopped. Okay, because we already have depleted, world has depleted 4/5 of the carbon budget. ओके, व्हाट इट मीन्स? कार्बन बजट का 4/5 यानी जितना वर्ल्ड झेल सकता है उसका 4/5 पार्ट हमने रिलीज कर दिया. वी कैन प्रोड्यूस ओनली 1/5 मोर. इट मीन्स दैट ओनली 1/5 एडिशन कैन बी withstood by earth. Okay, it means that now world is under danger. It also recognizes कि अब क्या है, climate change होगा ही, problems होंगे ही. Okay, you cannot stop these problems that have started happening in the country. आप इसको रोक नहीं सकते हैं, कंट्री का ही नहीं, वर्ल्ड में हर जगह. ओके, एंड द मेजर प्रॉब्लम ये हुआ क्यों? बिकॉज देयर इज ग्लोबल फाइनेंशियल लैप्सेस by developing countries. Developing countries कुछ खास नहीं कर पा रही हैं, and they have given the reason that developed countries are not helping much. Okay, the developed countries अगर commit करती तो ये हो जाता, but डेवलपिंग कंट्रीज एंड द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, उनके पास ऑलरेडी कोई
ऐसा रिसोर्स नहीं है जिससे वो कर पाते, ठीक है, उनके बस का ऑलरेडी नहीं था. बट नाउ नथिंग मच कैन बी डन. सो large financial gap is there, and we have less options to control the climate change. So the adverse impacts of the climate change will continue. Adverse impact of climate change will continue. Human induced, ये climate change कैसा है? This is human induced. Anthropogenic जिसे आप कहते हैं, okay, this is because of the activities of the human. It will continue and intensify, यानी यह बढ़ता जाएगा, प्रॉब्लम्स अब कम नहीं होने वाली हैं. okay, this will intensify in future. It will create a lot of problems. okay, so this is something that we had to cover. okay, अब नेचर की ही बात करते हैं. so horseshoe crab is in news. horseshoe crab. okay, if you look at this crab, ये घोड़े के पांव जैसा दिखता है. ऊपर से देखेंगे तो लगेगा जैसे घोड़े ने कहीं पांव रखा है, as if these are footprints of a horse. okay, and these are deep sea animals, and they come to India, okay, for breeding. ये ब्रीडिंग के लिए इंडिया आते हैं. ओके, बालासोर जो था एट ए पॉइंट इन टाइम, बालासोर इन उड़ीसा, दिस वाज अ प्लेस which was considered as the biggest breeding ground for these. ठीक है, so used to be, मैंने कहा it was in the past. ठीक है, यहां पे ये बहुत सारे आते थे. ओके, बट they are now not coming in those numbers. ठीक है, बालासोर में आते थे, चांदीपुर में आते थे, चांदीपुर बालासोर एरिया. ओके, बट टुडे इट इज नॉट हैपनिंग. और ये एक डीप कंसर्न है. कंसर्न क्यों है? बिकॉज दे आर वेरी ओल्ड एनिमल्स. ठीक है, दीज आर ओल्डेस्ट amongst the oldest living creatures on earth, amongst the oldest living creature on earth. ठीक है, and they are unique because not much morphological changes has happened for last 450 million years. यानी physically जो भी इनका बॉडी है, लेआउट है, साइज है, okay, they haven't changed for last 450 million years. For 450 million years. So they are kind of living fossils. ये इतने पुराने हैं कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं अर्थ के बारे में, लाइफ के बारे में, when we study about it. But they are under constant threat, okay, due to fishing. Okay, they are very unique animals. ठीक है, ये यूनिक इन अ सेंस दे हैव, इनकी एक यूनिकनेस की बात करें जिसपे क्वेश्चन आ सकता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में, दे हैव ब्लू ब्लड. ओके, हमारे बॉडी में क्या है? हेमोग्लोबिन है. ओके, आयरन का प्रेजेंस है. आयरन मेक्स आवर ब्लड रेड. बट दिस हॉर्सू क्रैब्स, दे हैव कॉपर इन देयर ब्लड. ठीक है, इनके ब्लड में हेमोग्लोबिन नहीं होता है, इनके ब्लड में हेमोसायनिन होता है, which is called as hemocyanin. Okay, and because of this hemocyanin, their blood is blue and not red. Okay,
तो जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स थे, ट्रेडिशनल ब्रीडिंग ग्राउंड्स की अगर हम बात करें, ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट, सो बालासोर इट वाज वंस द बिगेस्ट, लाइक आई सेड, बट यही सिर्फ नहीं है, इंडिया इनका एक फेवरेट प्लेस था। लाइक आई सेड, ये चांदीपुर भी आते थे उड़ीसा में ही, सुंदरबंस भी जाते थे, ओके, दे यूज्ड टू कम टू सुंदरबंस फॉर ब्रीडिंग and many more places in India. Now they are not coming to these places. ठीक है, सुंदरबन और दीघा वेस्ट बंगाल, ये दोनों वेस्ट बंगाल में है, एंड दीज आर इन उड़ीसा। ठीक है, ये दोनों प्लेसेस उड़ीसा में, इसको याद रखिएगा। अब इनकी सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, ओके, सो दीज आर important because if you do not have horseshoe crabs, okay, if you do not have horseshoe crabs, then it is going to be difficult to test, okay, the contamination in the blood. वैक्सीन टेस्टिंग में इनका काफी यूज होता है, okay, because their blood has an element, okay, वैक्सीन टेस्टिंग, इनका जो ब्लू ब्लड है, okay, it has an element which is used for testing the contaminants called endotoxin. Endotoxin in vaccine, okay, और ब्लू ब्लड में ये इंडोटॉक्सिन जो हो चेक हो पाता है, दिस इज बिकॉज ऑफ लेम्युलस एमिबोसाइट लाइजेट, लेल, okay, blue blood has lel is used for test of endotoxin. ठीक है, ये बायोलॉजी वाले पार्ट में भी आप पढ़ेंगे, ठीक है, इट इज लिम्युलस एमिबोसाइट लाइजेट, लिमुलस एमिबोसाइट लाइलेट, okay, it is a coagulant of the blood. ठीक है, जैसे हमारे में क्या होता है, विटामिन के की वजह से क्या है, खून बहना बंद होता है, तो सिमिलरली इसमें लैल होता है, एल दिस थिंग, ओके, और उसका यूज करके हम टॉक्सिन्स को चेक करते हैं, ओके। सो मेडिसिन की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, फॉर मेडिसिन एंड मेडिकल डिवाइसेस में इसको काफी यूज करते हैं, ओके, and it is considered so important that some of the countries like Japan, they have completely banned their, you cannot catch them, okay, they have banned their this thing. Now plastic glomerates, एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज है जो न्यूज में है, प्लास्टिक glomerates, okay, this is a rock that is made up of plastic, the rock made up of plastic, ठीक है, ये एक ऐसा रॉक है जो प्लास्टिक का बना हुआ है, which is not natural, okay, you cannot consider this rock as natural because they are mixture of sedimentary granules, विथ प्लास्टिक, ठीक है, सेडिमेंट्स जो है मिट्टी या बाकी जो भी मटेरियल है, मिक्स्ड विथ मिक्सचर ऑफ सेडिमेंट्री ग्रेन्यूल्स एंड प्लास्टिक, okay, so this is unique thing, this shows us that how much we have affected the world with the plastic, okay, और ये ट्रिनिडेड आइलैंड में मिला है, फाउंड इन ट्रिनिडेड आइलैंड, जो ब्राजील का हिस्सा है, ब्राजील से दूर है, ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ ब्राजील बट, ठीक है, सो ट्रिनिडेड आइलैंड पे मिला है, ओके, मोस्ट रिमोट पॉइंट इन ब्राजील,
अगर इसकी बात करें, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है. दिस इज मोस्ट रिमोट आइलैंड इन ब्राजील. ओके, ये सबसे दूर है, बहुत ही अलग थलग पड़ा हुआ एक आइलैंड है. एंड इट इज ऑलमोस्ट 1140 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मेन लैंड ब्राजील. तो लोकेशन पे भी बहुत बार पूछते हैं, तो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए. नाउ हाउ दिस प्लास्टिक ग्लोमरेट्स फॉर्म कैसे हो रहे हैं? ओके, अब ये प्लास्टिक ग्लोमरेट्स जो फॉर्म होते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द राइजिंग टेम्परेचर, ओके, विच मेल्ट्स द प्लास्टिक एंड plastic gets mixed with the rock. Okay, so high temperature melts plastic, and when it melts the mixture is created, and over a period of time, जब वो ठंडा होता है, solidify होता है, it becomes a rock. That rock is plastic glomerate. It is a rock. Okay, so you can get a question on this also. और ट्रिनिडेड में मिला है, तो ये बायोडाइवर्सिटी के लिए भी चैलेंज है, बिकॉज इट इज द बिगेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर ग्रीन टर्टल्स. ओके, इट इज द बिगेस्ट breeding ground for green turtles. Now these green turtles are at threat क्योंकि their eggs are soft when they come out, और प्लास्टिक जब पिघलेगा तो वो एग को भी इफेक्ट करेगा. ओके, so this is bad news for the world. Okay, now छोटे छोटे न्यूज हैं कुछ, उसको भी देख लेते हैं. Okay, like ये आपको पता है, but still I'll take these names because for one reason or the other ये न्यूज में रहा है. ग्लोबल श्री अन्न कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल श्री अन्न कॉन्फ्रेंस, अन्न का मतलब खाने से रिलेटेड है. ये हमारे भारत में हुआ था, मोदी जी ने क्या है इसको इनॉग्रेट किया था. दिस इज रिलेटेड टू मिलेट्स. ओके, ये मिलेट से रिलेटेड है. एक चीज तो ये याद रखनी है. ओके, एंड व्हेन दिस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च was declared global center of excellence. Okay, Indian Institute of Millet Research. ऑफ मिलेट रिसर्च, जो आईकार का पार्ट है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का पार्ट है ये, ऑफ आईकार, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च. एग्री रिसर्च. ओके, डिक्लेयर्ड ग्लोबल मिलेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस. CO is for Center of Excellence, Global Millet Center of Excellence. Okay, now the other thing for which this conference is important, ठीक है, so a term was used. यहां क्या है कि एक स्टार्टअप मीट भी हुई थी. ओके, सो दिस इज एग लाइव 2023. अगर ये पूछता है कि व्हाट इज एग लाइव 2023, तो दिस वाज कॉम्पेंडियम ऑफ एग्री स्टार्टअप्स. ओके, जिसे श्री अन्न स्टार्टअप्स भी कह रहे हैं. श्री अन्न स्टार्टअप्स हैपेंड हियर. ओके, सो एग्री लाइव क्या है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है. सो दिस वाज अ जनरल कंपटीशन अमंग द दिस थिंग. ओके, द मिलेट चैलेंज एक हुआ था इसमें. कॉम्पेंडियम में क्या किया, द मिलेट चैलेंज नाम से स्टार्टअप्स क्या क्या कर रहे हैं,
उन चीजों को इन्होंने हाईलाइट किया यहाँ पे. ओके, सो देयर कैन बी ए क्वेश्चन ऑन एनी ऑफ दिस. एग्री लाइव क्या है या ग्लोबल श्री अन्न क्या है. ओके, एंड मिलेट्स के बारे में आप जानते हैं, इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड. ओके, इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ millet in world, and this is an important piece of information that you need to remember. Sometimes they ask some small facts like these, but this is simple, you can remember this. Okay, Rajasthan, Maharashtra, Karnataka, Andhra, MP यानी ड्राईलैंड एरियाज ऑफ इंडिया वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसे आप ड्राईलैंड फार्मिंग कहते हैं, वहां पे होते हैं. ओके, नाउ मिशन सहभागिता, ये फिर से न्यूज में है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, बट स्टिल आई विल रिपीट, बिकॉज अगर कोई न्यूज आइटम बार बार आ रहा है, इट मीन्स दैट द चांसेस ऑफ इट अपीयरिंग इन एग्जाम इज मोर. ओके, आई एम रिपीटिंग दिस थिंग ओनली बिकॉज so that you can revise this properly. Mission Sahbhagita by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Okay, so इसमें क्या है, ये मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है. एंड यहां पे क्या हुआ है, मैंने पहले भी बताया कि इट इज पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव, पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव. ओके, दिस इज पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव, ये याद रखना है आपको. ओके, एंड दिस इज अंडर दिस 2 फरवरी, दैट इज वर्ल्ड वेटलैंड डे. सहभागिता मिशन में क्या किया गया है, सेव वेटलैंड कैंपेन वाज लॉन्च्ड. ओके, सेव वेटलैंड कैंपेन ऑन 2 फेब. 2 फेब क्या है, वर्ल्ड वेटलैंड डे. ओके, सो अंडर दिस इट वाज रिलेटेड टू वेटलैंड. तो वेटलैंड को ढंग से पढ़िए, वेटलैंड डिफरेंट रीजंस के लिए न्यूज में चल रहा है. ओके, तो रामसार कन्वेंशन के अंदर वेटलैंड, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड भी आपने पढ़ा होगा. ओके, 2 साइट्स जिसके अंदर क्या है कि ग्लोबल इंपॉर्टेंस के वेटलैंड है इंडिया में. ओके, तो सोसाइटी ओनरशिप अप्रोच टू द वेटलैंड, इसको फोकस किया गया था. नाउ वन मोर थिंग दैट यू हैव टू रीड अबाउट इज स्मार्ट सिटी मिशन, जो हम पहले कवर कर चुके हैं. ओके, बट ये आपको जानना क्यों जरूरी है, इस साल इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जून 2023, ओके, द टारगेट्स आर टू बी अचीव्ड. Okay, and this was a target which was given to only Shillong, was only for Shillong initially, but कोई भी नहीं कर पाया, so it was extended for all, extended to all later, and unfortunately अभी भी नहीं कर पाएंगे. ओके, इवन शिलोंग को 20 टारगेट दिए थे, वो एक ही कर पाया. सो दिस इज समथिंग कि जून 2023 में खत्म होने वाला था. सो ओनली आउट ऑफ 100 ओनली 20 मे अचीव द टारगेट, यानी 80 तो अचीव नहीं करेंगे. ओके, और आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा शिलोंग को ही क्यों लास्ट दिया गया, बिकॉज शिलोंग वॉज द लास्ट स्मार्ट सिटी अंडर द मिशन. ओके, तो शिलोंग आखिरी शहर था, 100वां शहर था जिसे स्मार्ट सिटी बनाया गया. सो इट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, नाउ desalination plant in Lakshadweep is in news. ठीक है, the desalination plant
desalination plant in Lakshadweep, 10वां बनाया जा रहा है. Okay, the 10th one is being constructed here, the desalination plant. Okay, and it is green self-powered desalination plant. Okay, green self-powered, यानी अभी तक ये डीजल यूज करते थे. ओके, अर्लियर वर्जन्स यूज्ड डीजल. ओके, डीसैलिनेशन प्लांट मतलब ओशन वाटर से और सलाइन वाटर से फ्रेश वाटर निकालना टू फ्रेश वाटर. ओके, सो सलाइन वाटर से फ्रेश वाटर निकालने की जो तरीका है वो पहले क्या यूज करता था, यूज टू डीजल विच वाज हार्मफुल टू द एनवायरमेंट. ओके, बट नाउ द plant will use low temperature thermal desalination. Okay, to use low temperature thermal desalination, low temperature thermal desalination, it is a very good technology. Okay, this is a very good technology. क्यों? क्योंकि यहां क्या है, सरफेस का जो टेम्परेचर है और आपके 600 फुट नीचे जो टेम्परेचर होता है, ओके, इसमें 15 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है, सरफेस एंड दिस 600 फीट डीप. तो डिफरेंस इज 15 डिग्री सेल्सियस. So in this technology that is called as low temperature thermal desalination, इस टेम्परेचर डिफरेंस को ऐसे यूज करते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पे इवापोरेशन स्टार्ट हो जाता है. ओके, होल ऑफ द टेक्नोलॉजी यू विल रीड इन साइंस एंड टेक, लेकिन आपको समझना है यूजिंग दिस डिफरेंस एंड सम मशीनरी दे क्रिएट ए सिचुएशन वेयर इवापोरेशन स्टार्ट्स. एंड ये इवापोरेटेड वाटर कैसा है, फ्रेश वाटर है. सो दे कलेक्ट द इवापोरेटेड वाटर, दैट इज फ्रेश वाटर, एंड इट इज सप्लाइड टू द पीपल. लेकिन पहले यही काम जो है वो डीजल इंजन से करते थे, अब ऐसा नहीं करेंगे. ओके, बिकॉज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, NIOT, ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, ओके, जिसने क्या किया है, ये एक नया तरीका खोजा है. ओके, सो पोर्टेबल वाटर टू द लक्षद्वीप, जो पीने लायक पानी है ये प्रोवाइडर टू लक्षद्वीप था ऑफ पोर्टेबल वाटर. ओके, टू लक्षद्वीप. इनको NIOT देता था अपने 6 डिसैलिनेशन प्लांट से 1 लाख लीटर पर डे सबकी कैपेसिटी थी. ओके, नाउ दे आर डेवलपिंग ए न्यू मेथड जो कि ग्रीन है, जहां आपको पॉल्यूशन नहीं होगा. ओके, सो मोर इंफॉर्मेशन डेफिनेटली आई विल गिव यू इन द PDF that you can get on the channel. Okay, so these are some of the things that you need to read. Worldwide क्या है, बहुत ही ज्यादा पानी वेस्ट करने वाले तरीके, एनर्जी इंटेंसिव, जिससे आप पानी पीते हैं RO. ओके, सो मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी आज भी RO ही है, रिवर्स ऑस्मोसिस, mostly used. Okay, but it is energy intensive. This is not a good method, but thermal method क्या है, it is one of the finest method जहां energy का अच्छा यूज कर रहे हैं प्लस पॉल्यूशन भी नहीं कर रहे हैं. Okay, so these are some of the things that we had to cover, and there was a lot of news within these few days. ठीक है, इसमें बहुत सारा न्यूज था. सो मे बी you need to focus more, you need to invest more time on this segment, because the things that we have covered, there can be a question on this. The things that we have covered, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके आज वाले से ही बन सकते हैं, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे न्यूज थे जो रिपीट हो रहे थे. ओके, सो मेक श्योर दैट यू आर गोइंग थ्रू दीज, एंड
In the very next lecture, I'll definitely make sure that you get more information, more current affairs which is relevant to the exam. Okay, so cover this till next video is available to you, and that will happen within a week only. Okay, so everyone stay healthy, stay blessed. I'll take your leave. Thank you very much.